Okay, so let us start our class. A very good morning to everyone. So, we are now done with our unit number 3, which was completely based on word processing. Means what all things we can use in MS Word were already now seen by us, and we can say most of the basic to advanced features related to MS Word are now known to us. Now, in the same way, we will be going through our next unit, which is unit number 4, which is now related to spreadsheet. Last year we do have the chapter spreadsheet, but that was the basic one. That was the basic one, and this year we are having the intermediate level of spreadsheet. This simply means that there will be some more advanced level of concepts, advanced level of features that we are going to study about spreadsheet, other than the basic ones that we have already seen in our previous year, that is in ninth class. So, what spreadsheet is? The first and very basic thing is what is a spreadsheet. So the software that generally comes inside the category of spreadsheet is MS Excel. We might have heard about this, and we have even used MS Excel in our previous classes. Means 6th, 7th, 8th. Also, we have seen what MS Excel is, and we have also worked upon the various things that MS Excel can do. All right. So today we will be seeing our session number 1, which is use AutoSum in cells. We are here given set 12 sessions, which are all the intermediate level features of spreadsheet that we will be going through. But today we will be going understanding the very first session, which is use AutoSum in cells. AutoSum, as the name suggests, automatically calculating the sum of the values which you have given will be known as AutoSum. How MS Excel can do the calculations by itself? How we don't need to calculate, and MS Excel will help us calculate the things. Those things are explained to us here. So let us start with what MS Excel is. Okay, let us start. All right. So just a minute. We have learned to navigate in a spreadsheet, popular cells and perform calculations. हमने देख चुके हैं हम कि स्प्रेडशीट कैसे बनती है, कैसे हम सेल्स के नाम क्या होते हैं वो भी हमको पता है, कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी हम जानते हैं. ठीक है. यहाँ पर एम एस एक्सेल की डेफिनेशन ही ये होती है, इट इज़ मेड फॉर मेकिंग द कैलकुलेशंस ईजी, है ना. रिकॉर्ड्स होल्ड करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए वी आर गिवन द सॉफ्टवेयर विच इज़ एम एस एक्सेल. नाउ, as you know, a spreadsheet offers various mathematical functions to perform the calculations. So spreadsheet में बहुत सारे mathematical functions perform करने के लिए बहुत सारे features हमको provided हैं. One of the feature which is important is AutoSum. We are going to study about AutoSum over here. Let us see. Okay. Sum is one of the functions available in spreadsheet to perform addition of the selected numbers in the sheet. किसी भी शीट में वैल्यूज़ का सम निकालने के लिए हमें जो यहाँ पर एक फीचर यूज़ करना होता है वो होता है सम. अब सम simply we can either write the values and make the calculations using calculator and simply write the total answer, but this is not at all required in MS Excel, because MS Excel is capable of calculating the values by itself. All right, it can make calculations itself. And how it can make calculations by itself? So there is one feature called AutoSum that will help us to make the calculations in MS Excel. All right, so in this exercise you will learn how to AutoSum फंक्शन टू परफॉर्म एडिशन इन अ स्प्रेडशीट. हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि ऑटोसम कैसे परफॉर्म किया जाता है. चलिए, व्हाट इज ऑटोसम? ऑटोसम इज यूज्ड फॉर एडिंग द वैल्यूज गिवन इन सेल्स ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला टू परफॉर्म द ऑपरेशन. है ना, आपको यहाँ पर ऑटोसम करने का तरीका बताया हुआ है कि ऑटोसम आप क्या कर, ऑटोसम का मतलब क्या होता है. तो ऑटोसम मीन्स कैलकुलेटिंग द सम ऑटोमेटिकली, है ना. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सम कैलकुलेट करने के लिए भी एक फंक्शन एम एस एक्सेल में दिया हुआ है. नाउ हाउ टू परफॉर्म दिस ऑटोसम, तो ये हम देखते हैं. ऑटोसम जनरली परफॉर्म करने के लिए 3 वेज है हमारे पास. ठीक है, देयर आर 3 वेज यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म ऑटोसम. ठीक है, अब ऑटोसम परफॉर्म करने का सबसे पहला तरीका तो एक सिंपल एक बटन होती है, उस ऑटो सम की बटन पे क्लिक करो और सम विल बी कैलकुलेटेड.
that is the very first way. Now the other two ways are using the formula, है ना. अब एक मेथड तो सिंपली बटन पे क्लिक करो आंसर निकल आएगा, बट ये आंसर निकालते हैं जब ये जो ऑटो सम कैलकुलेट होता है, तो ये ऑटो सम के कैलकुलेशन के टाइम पर बैकएंड पर बैकग्राउंड पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, हम डायरेक्टली अगर वो फॉर्मूला ही यूज़ कर लें तो भी हम ऑटो सम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वे आउट इज, यू कैन सी ओवर हियर, we are given one Excel sheet, and in this Excel sheet you can see there are names of some students, and those students have scored some marks in English, Hindi, maths and science, and we have to calculate the total marks of each and every student. All right, now how to calculate? So you can even use calculators and write the values, but it will be burdensome. You have to make the calculation and writing the values. So what is the need of using MS Excel, है ना. MS Excel की ज़रूरत ही क्या है, जब ऐसा सब हमको करना है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट ऑन अ पेज एंड मेक द कैलकुलेशंस एंड सेव इट, है ना. बट यहाँ पर क्या होता है, इफ़ यू हैव रिटन मिस्टेकन फॉर सम ऑफ द वैल्यू, सो यू कैन चेंज द वैल्यू एंड द सम विल ऑटोमेटिकली बी चेंज्ड. सो दैट इज़ पॉसिबल इन एक्सेल. अब ये आप हैंड रिटन फाइल पे करते तो नहीं होता ना. हैंड रिटन फाइल पे आपने एक वैल्यू लिख दी, आपने 26 लिख दी है, बच्चे के मार्क्स 62 थे. Now when you will be changing, you have to recalculate the values, and total value will also change. But over here this is not the case. If you have mistakenly written some wrong values, so as soon as you will change the value, so the sum will also change. सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. वहाँ पर आप लोगों को सम को फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो चलो देखो कैसे करेंगे इसको, तो हम वो देखते हैं. सबसे पहले लेट मी जूम इट इन. सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है, ये फर्स्ट वैल्यू कौन से सेल में है, पहले तो हमको ये देखना होगा कि फर्स्ट वैल्यू है कौन से सेल में. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन से सेल में है, तो ये है B2, ठीक है, ये B2 में है, यहाँ दिख रहा है B2. तो B2 को आपको क्लिक करना पड़ेगा. B2 पे क्लिक करने के बाद आपको बची हुई वैल्यूज़ को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा. बची हुई वैल्यूज़ मतलब कौन सी वैल्यूज़, तो B2 पे यहाँ पर, अच्छा सॉरी B2 नहीं, B2 पे तो नाम लिखा हुआ है, हमको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, तो B2 को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश के मार्क्स को. जैसे कि आभास के इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 86. तो 86 कौन से सेल में है, C2. सो वी विल सिलेक्ट C2, और C2 के बाजू वाला भी सिलेक्ट करेंगे D2, D2 के बाजू वाला E2, E2 के बाजू वाला F2. We will select all these values. Once we are done with the selection of these values, then we will do what? We will go to the home tab. Under the home tab, we will be going to an option which is auto sum. मैं बताता हूँ कहाँ पर होता है ये. तो आप लोगों को सबसे पहले होम टैब में जाना होता है. होम टैब के अंदर जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेते हो, वंस यू सिलेक्ट द वैल्यूज़ को सिलेक्ट हो जाने के बाद हमको जाना होगा एडिटिंग ग्रुप में. यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है. अंडर द होम टैब देयर इज एडिटिंग ग्रुप, एंड अंडर द एडिटिंग ग्रुप देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑटोमेटिकली विच इज नोन एज ऑटो सम. तो यहाँ पर आपको इस ऑटो सम पे क्लिक करना होता है. ऑलराइट, जैसे ही इस ऑटो सम पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि इन सारी वैल्यूज का सम निकल कर यहाँ पर आ जाएगा automatically. All right, this is how AutoSum function works. So what we did for calculating the values by itself, we first wrote the values which has to be calculated. Once writing down those values, we selected all those values and simply clicked on the simply went into the home tab under the editing groups, and under the editing groups there is an option of AutoSum which we clicked on. और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, we can see that the sum will automatically get calculated in the very next cell which is present, है ना. जो बिल्कुल नेक्स्ट सेल वहाँ पर होगा उसमें AutoSum कैलकुलेट होकर आ जाएगा. तो ये होता है AutoSum की फंक्शनैलिटी. कहाँ पर होती है, तो ये आप नीचे वाले स्क्रीनशॉट को देख कर समझ सकते हो. यहाँ पर देखो, ये वाले स्क्रीनशॉट में यहाँ पर दिखेगा होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटो सम का फीचर दिया हुआ है. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखो, एक तरीका तो ये था जिसको हमने यहाँ पर अप्लाई करके देख लिया. और भी दो तरीके हैं, बट वो दो तरीके क्या होते हैं, वो सम फंक्शन का यूज़ करके हमको करने पड़ते हैं. तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको, वी विल सिंपली राइट सम फंक्शन
और हमको एक बात ये पता है कि जब कभी हम कोई फार्मूला लिखते हैं, जब कभी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, सो एम एस एक्सेल में हर एक फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू के साइन से. सो एवरी फार्मूला इन एम एस एक्सेल स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन, सो यू हैव टू पुट एन इक्वल टू. Once you put equal to, then you have to use the sum function, and under the sum function you have to write the values. Means पहली वैल्यू जैसे कि हम बोले C2 थी तो C2 लिख दिया. अब देखो इधर क्या होता है, C2 से लेकर D2 से लेकर E2 से लेकर F2, ये चारों वैल्यूज अगर आपको लिखनी है तो यहाँ पर चारों वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पहली वैल्यू लिखो, आखिरी वैल्यू लिखो, C2 और F2, ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है, मैंने ये दो वैल्यूज लिख दी. ऐसा लिखने के बाद दोनों के बीच में एक कोलोन का साइन लगा दो, दो डॉट्स जिसको बोलते हैं हम कोलोन का साइन. आप लोगों को क्या करना है, द इनिशियल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू एंड इन बिटवीन द कोलन साइन. जैसे ही आप कोलन का साइन लगाओगे इनके बीच में, तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली C2, D2, E2, F2 इन चारों का सम निकालकर कैलकुलेट करेगा, है ना. तो यहाँ पर चारों का सम कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, इन बिटवीन कोलन, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू राइट. Once you write this, all the values between which are coming between C2 and F2 will also be counted and they will calculate the sum of those values. So this is the second way out using which you can make the calculations. The third way, let me explain. The third way is simply write equal to sign and write the names of the values, means B2 plus C2 plus D2 plus E2. जैसे कि इनका कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2, ऐसा लिख दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली सम निकल कर आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन, जैसे कि मुझे ये वाले फील्ड में सम कैलकुलेट करना है. ठीक है, एक बात समझना, यहाँ पे कर्सर रखो, ये क्या है आपका G6 है, G6 पे आपने कर्सर रखा और आपको इसके बाजू के ये कॉलम्स का टोटल निकालना है. तो G6 पे कर्सर रखा है तो आप पहले इक्वल टू का साइन लगाओ, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर C6 प्लस D6 प्लस E6 प्लस F6. वंस यू राइट दिस, सो ऐसा लिखने से भी आपका टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा. तो ये भी एक तरीका है जिसका यूज़ करके हम सम निकाल सकते हैं. सो आई एक्सप्लेन्ड यू 3 वेज यूजिंग विच वी कैन मेक द कैलकुलेशंस, है ना. तो और कैसे कैसे हो सकता है, तो पहला तो होम टैब में एडिटिंग ग्रुप्स में जाने के बाद, एडिटिंग ग्रुप्स में जाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे ऑटो सम को, तो सम कैलकुलेट हो जाएगा. अदर देन दिस दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएं, सम फार्मूला यूज़ करें, पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू, लास्ट वैल्यू फाइनल वैल्यू, इसको लिखें और बीच में कोलोन का साइन लगा दें. अगर हम ऐसा भी कर देते हैं तो यहाँ पर उन चार वैल्यूज़ का सम निकल आएगा. थर्ड वे आउट इज़ पुट एन इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन लगाने के बाद आप सारी वैल्यूज़ लिख दो, C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, ऐसा भी लिख दोगे तो भी सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा. सो ये सारी की सारी वेज हैं, ये सारे के सारे तरीके हैं जिनसे कि आप देखोगे कि सम कैलकुलेट किया जा सकता है. चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को सम कैसे कैलकुलेट करना है ये क्लियर होगा. हम बढ़ते हैं आगे. चलो, यहाँ पर ऑटो सम के बारे में कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं, वो हम और देखते हैं. ऑटो सम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट AutoSum automatically selects the values around the cell either horizontally or vertically. चलो, one more thing which is clear to us now is कि यहाँ पर ये horizontal तो चलता ही चलता है कैलकुलेशन. अगर आप ऐसा कैलकुलेशन भी करना चाहते हो वर्टिकल, सो वर्टिकल कैलकुलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन ऑटोसम. तो आप लोग या तो एक के नीचे एक वैल्यूज़ लिखो तो भी टोटल निकल आएगा, और अगर एक के बाजू में एक लिखो तो भी टोटल निकल आएगा. तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस तरीके से भी सम कैलकुलेशन किया जा सकता है. ठीक, मीन्स हॉरिजॉन्टली as well as vertically, both the ways are available to us using which we can make the calculations. All right, आगे बढ़ते हैं. और क्या लिखा हुआ है, in the above example you want to perform the एडिशन ऑफ नंबर्स लिस्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट आफ्टर फाइंडिंग द टोटल, है ना. अब आपने क्या किया कि यहाँ पर इनका भी टोटल अगर निकालना हो एक के नीचे एक, कि 348 प्लस 353 प्लस 349 प्लस 335 प्लस 280, यू नीड टू कैलकुलेट दिस. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल डू वॉट, यू विल फर्स्ट सिलेक्ट ऑल दीज वैल्यूज़. लेट मी टेल यू, you will select first all these values.
After selecting these values, you will go to the home tab, editing group and click on AutoSum. As soon as you will be clicking on AutoSum, तो यहाँ पर नीचे इस पार्ट पर ये जो नीचे वाला सेल है ना, ये नीचे वाले सेल पर सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा. ये एक तरीका हुआ. ठीक है. उसके बाद एक और तरीका क्या हो सकता है, तो उसके बाद आप ये लिखोगे इक्वल टू और सम, और इसमें फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट में और लास्ट वैल्यू और बीच में कोलन. तो ये मैं पहले कोलन लगा देता हूँ, फिर बताते हैं हम. फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, फर्स्ट वैल्यू है F2, है ना, नहीं G2, मेरी फर्स्ट वैल्यू है G2, लास्ट वैल्यू है G6, बस फर्स्ट वैल्यू G2, लास्ट वैल्यू G6. एज सुन एज आई राइट दिस एंड पुट एन एंटर, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा सम मुझे यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, सम कैलकुलेट हो जाएगा. अगर मुझे इस तरीके से नहीं करना होता तो मैं एक और तरीका क्या कर सकता था, इक्वल टू G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 ऐसा करके भी लिख देता, तो भी मेरा कैलकुलेशन आ जाता. ठीक है. तो ये 3 तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है हमको. चलो कहाँ थे हम. आफ्टर फाइंडिंग द टोटल ऑफ 2% वैल्यू परफॉर्म ऑटो सम, हाँ, इन दैट केस यू हैव टू सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू परफॉर्म एडिशन. तो हमने ये चीज़ देख ली, वी ऑलरेडी डिड दिस, कि हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन के साथ साथ वर्टिकल कैलकुलेशन कैसे होता है. दिस इज नाउ सीन बाय अस. सो वी आर एबल टू मेक द कैलकुलेशंस यूजिंग द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द vertical way that can be used for making the calculations in MS Excel. Right now we are now done with the part that we are supposed to do in our class. Let us see what is given to us in this last paragraph and then we will end. Now change the marks of one of the students on or more in one or more subjects. Okay. Now they are telling that now make some changes in the marks that you have entered. All right. As soon as you will change the marks, you don't need to calculate the AutoSum again. What will happen? The values will automatically get changed and you need not to calculate the total again, because it will automatically change the total. Dependent on the values it will automatically change the total. अगर हम पेन पेपर्स पे लिख रहे होते तो वो पॉसिबल नहीं था, आप लोगों को काटना पड़ता. You should make another calculation and then you are supposed to write the value, but it is not the case over here. The values changes automatically, the sum changes automatically as soon as we make changes in some of the values. So this is something that has to be a benefit for us, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है, we mistakenly write some wrong values. तो अगर ऐसा हो जाता है, गलत वैल्यूज़ डाल देते हो, so no need to worry, just change the values change करोगे, टोटल वहाँ पर चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने वही लिख कर बताया हुआ है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस ऑफ फार्मूला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है जिससे कि ऑटोसम से, जिससे कि हम गलत कैलकुलेशन से तो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं. यहाँ पर हमको हमेशा करेक्ट टोटल ही देखने को मिलेगा. ठीक है. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑटोसम. Actually in today's class I was supposed to take a test of yours, but as I didn't inform you previously, कल मुझे बता देना था कि मुझे टेस्ट कंडक्ट करना है, पर मैं बोल नहीं पाया आप लोगों को. दैट्स वाई आई टुक दिस फर्स्ट सेशन for today's class. Otherwise we would be giving out the test today. No problem. We will see if we will find some time on Monday. I will let you know कि टेस्ट होगा या नहीं, क्योंकि नाउ नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो तो अब नेक्स्ट वीक में ही है, और नेक्स्ट वीक में तो आपके ऑलरेडी पेपर ही रहेंगे. तो वी विल सी कि पेपर्स आप लोगों के लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम फिर क्लासेस उसकी कंडक्ट करेंगे. टेस्ट के लिए तो बिना क्लासेस के भी एक टाइम फाइनलाइज कर लेंगे. छोटा सा टेस्ट है, इट विल बी ऑफ अराउंड 30 मिनट्स. तो वो फिर अब मंडे को देखेंगे. ए सेक्शन का भी कंडक्ट करना है और आपका भी कंडक्ट करना है, तो वो फिर वहाँ से कंडक्शन उसका देखा जाएगा. सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडेज क्लास आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. यू कैन गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू फाइंड दैट सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट अंडरस्टूड टू यू, और इफ़ यू फाइंड कि कुछ नेटवर्क इशू था, आवाज़ नहीं आ पाई, तो ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ. सो यू कैन गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड एंड आस्क योर डाउट्स. अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास.